audible? And what about online participants? Okay, so sorry. So now mic is on. So hopefully I am audible well. So today's topic, sorry, topic is significance testing. So before moving forward, let me take up a case that has already been shared with you. Okay. So it is expected that all of you should read the case as fast as possible. Okay. It is there on the Telegram group also. Okay. So in the first paragraph, that thing has to be noted as this is related to the Ventura. It has 1150 executives or 1150 outlets, but the data that has been collected has been from 60 sales executives or outlets. Is that okay? And some sampling scheme is being used. This data has been collected on different features or variables like location, type of the outlet, sales of the outlet in the first quarter, second quarter, third quarter, and the fourth quarter, right? You can ignore this part because it is primarily being covered under descriptive statistics. That was the session yesterday. There are two related facts. Number one, an advertisement campaign was launched in the beginning of the second quarter, and the sales promotion program was also being launched at the beginning of the fourth quarter. Right? Now, okay. Let us discuss this part. So 75,000, but from some quarters, there is a news of sales drop this year. So it has to be confirmed. Is that okay? My question is, obviously you can calculate, you have the data. This is the data. Data has already been there. Okay, this is the data. We can run the descriptive statistics. So we may have some measure of center tendency. हमको मान लीजिए इसमें कोई outliers नहीं है, as you can see. So we can have a mean also. तो हमने मान लीजिए mean निकाल लिया, right? There is some value of the mean, right? Suppose mean comes out to be 72,000, right? So my question is, can we say that there is a sales drop in this year? Question clear हो गया सबको? What was the conjecture? The first conjecture was, he believes that sales कितनी होनी चाहिए? 75,000 होनी चाहिए, right? जो डेटा दे रखा है, डेटा से जो मीन निकाला गया, that comes out to be 7
क्या एक्चुअली ड्रॉप हुई है कि नहीं? ओके, why hypothesis is to be tested? Hypothesis is to be tested. The important thing is Ventura has, what is the total sales force or what is the total number of outlets that are there? 1150. हमारे पास डेटा किसका है? All 1150 का है या एक सैंपल का है? सैंपल का है, right? So sample can be a miniature of the population, but it can never be a perfect miniature of the population. अगर हमारे पास डेटा सभी पॉपुलेशन का होता, 1150 आउटलेट्स का होता, then we say with confidence कि sales drop हुई है. Is that okay? Right? So why we are studying this topic? हम लोग जब रियल लाइफ की बात करते तो रियल लाइफ में वॉट एवर डेटा यू रिसीव, क्या आपको लगता है कि हमारा डेटा पूरी पॉपुलेशन का पूरे ग्रुप का हो सकता है? नहीं पॉसिबल है. अगर आप अगर शहर में आ रहे हैं या कहीं से एजुकेटेड हैं, पॉपुलेशन, इवन देन अगर आपको कंप्लीट पॉपुलेशन डेटा मिल जाए, तो जो आप करते हैं वो फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन करते हैं. फ्यूचर के लिए दैट बिकम्स अ सैंपल, क्योंकि फ्यूचर में कुछ दूसरा डेटा आ सकता है. So this is a typical problem of all the decision making situation. कि whatever data that we receive, वो हमारा complete totality का नहीं होता है. किसका होता है? एक part of the totality का होता है, that is known as sample. Is that okay? So all these questions जिनका हमको आंसर करना है, इसको हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे. इट इज रिलेटेड टू द इंटायर वेंचुरा. और हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल सिर्फ हमारे पास सैंपल का अवेलेबल है. इज दैट ओके? तो सिनेरियो क्लियर है? सो दिस इज अ टिपिकल प्रॉब्लम विद ऑल द रिसर्चेस, ऑल द इवन ऑल द एनालिटिक्स केसेस ऑल्सो, कि हमारे पास डेटा का we get a part of it. हम इसको एग्जामिन करना है कि whether there is a substantial difference between sample results and the population. Is that okay? Right. So for that we have to study the topic that is known as significance test. Okay. तो ये topic हम लोग करने जा रहे हैं, that is known as, actually there are two words as you see. Just a moment. Okay. So suppose probably I have uploaded the another file anyway, so you can have this file also. Data can be shared later on. Okay. So there are two parts. One is significance testing, and other part, the first part is the significance, other part is the testing. Okay. So here we want to test. Now there are two things. One is results from the population. और दूसरा क्या है? Results from sample. अगर हम लोग हमारे पास पॉपुलेशन का या टोटलिटी का हमारे पास डेटा है, तो हमें कुछ नहीं सोचना पड़ेगा. जो चीज है वो चीज एज इट इज है, जिसको हम लोग कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी. इज दैट ओके? लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट्स मिलते हैं, रिजल्ट्स कहाँ से मिलते हैं? सैंपल के मिलते हैं. तो वी एग्जामिन whether there is, we test whether there is substantial difference or significant difference between the sample results and the population results. So this is the objective for which we study the topic. और इसको करते किसके थ्रू है? It is being done by testing of hypothesis, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं. So before moving forward, let us discuss certain terms. Population simply means it is related to totality of the problem. किसी भी problem situation से related जो total होता है, that is known as population. This population can be a demographic population. This population can be even
the non-demographic or non-human population. And sample is a representative subset of the population. So we try that sample should be perfect miniature. Now there are two types of study. One is the census, other is related to sample survey. Census means we consider the entire population, which is practically very difficult. The other thing is we consider data that is there from a representative part of the population, right? So normally we have data only from sample survey. And the topic that we are going to study, it belongs to the part that is known as statistical inference. There are two words, one is statistical, other is inference. So it simply means inferring about the population on the basis of sample, right? Normally we use word infer. आप लोग में कोई कह सकता है why we don't use the word determine? हम लोग determine word क्यों नहीं use करते? या in which situation determine can be used? Yes, definitely. Determine is the, ये आंसर किसने दिया? Okay, right? Determine is from the deterministic model when you have complete population or there is no confusion, 100% confirmed. But when we consider, whenever we take a sample, we know one sample is not possible. जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, what is the population size? 1150, and we have a sample of size 60, right? So number of samples that are possible are quite large. It can be 1150 C60 if we use WOR sample, or 1150 to the power 60 if we use with replacement sample. So you can imagine कि कितने सारे sample possible है. Different samples may give different results. Is that okay? So अभी हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग एक ही sample से कर रहे हैं. So whatever we take can never be a confirmative part. Is that okay? So there is always some uncertainty, जिसको हम लोग probabilistic model से कहते हैं. That's why we always use the word inferring. ठीक? इसमें जो part हम लोग करने जा रहे हैं, that is known as significance testing or testing of hypothesis. First, we discuss the definition. Then I will take certain example. It is examining the. There are certain words जो बहुत important है. Examining the declaration, perception, claim, assertion, conjecture about the population. This is known as hypothesis. And hypothesis testing means हम उसकी correctness को examine करते हैं through the sample data. Is that okay? Right. So let us go back to, just a moment. Yes. Deterministic is confirmative, right? Where there is no confusion, everything is certain. So you can be deterministic only for a population. सैंपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? और हमारे पास इस समय कितने सैंपल हैं? एक ही सैंपल है. सो फ्रॉम सैंपल वी कैन नेवर बी कंफर्म. सैंपल से हम लोग एट मोस्ट क्या हो सकते हैं? हम लोग इन्फर कर सकते हैं वेयर वी अप्लाई सम प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट. सो दैट इज नोन एज रैंडम मॉडल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल. इज दैट ओके? ओके. सो लेट अस डिस्कस दिस पार्ट. हम लोगों ने अभी हाइपोथेसिस डिस्कस करी. तो माय क्वेश्चन इज, हाइपोथेसिस एक एजम्पशन है या एजम्पशन से बड़ी चीज? अगर हम लोग इस पे फॉलो करें, हियर आई हैव रिटन अ वर्ड, मिस्टर उन्नी कृष्णन इज एन एक्सपीरियंस एंड सीजन मैनेजर एंड हैज अ वाइड एक्सपीरियंस इन द डोमेन ऑफ एफएमसीजी सेल्स प्लानिंग. इन दो लाइंस का कोई मीनिंग है कि ऐसे लिखा गया है? ये आपको बता रहा है कि मिस्टर उन्नी कृष्णन का अगर कोई परसेप्शन है तो वो एक वेक एजम्पशन नहीं है. वो क्या है? देयर इज अ पॉजिटिव डिक्लेरेशन, देयर इज अ कंजेक्चर, राइट? देयर इज अ क्लेम.
एंड देयर इज सम सब्सटेंशियल थिंग जो उसके बैकग्राउंड में वर्क कर रही है। तो अगर हम लोग रिसर्च की बात करें, डेटा एनालिसिस से पहले आप लोग क्या करते हो? लिटरेचर रिव्यू करते हो। तो लिटरेचर रिव्यू आपको क्या सजेस्ट करता है कि इन टॉपिक्स को एग्जामिन किया गया, इन वेरिएबल्स को एग्जामिन किया गया, उन्हीं वेरिएबल्स को आगे लेकर के हम लोग चलते हैं। तो जो चीजें लिटरेचर रिव्यू से आती है वो एजम्पशंस होती हैं या एक पॉजिटिव डिक्लेरेशन होता है? इज ए पॉजिटिव डिक्लेरेशन। तो हमेशा मान करके चलिएगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एजम्पशंस की नहीं होती है, किसकी होती है? हाइपोथेसिस की होती है। सो कोई भी अगर हम लोग हाइपोथेसिस ले रहे हैं तो हाइपोथेसिस शुड बी, yes, hypothesis should be some substantial evidence to support. Is that okay? तो वो लिटरेचर रिव्यू से हो सकता है, पुरानी रिपोर्ट से हो सकता है, किसी एक्सपीरियंस सर्वे से हो सकता है, जिसको हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में करते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी क्लेम्स करे गए हैं, दे आर नॉट द एजम्पशन, दे आर इन द फॉर्म ऑफ कंजेक्चर और हाइपोथेसिस। इज दैट ओके? Right? So this is a declaration, perception, claim or assertion or positive declaration about the population. Is that okay? Right. So we examine about its correctness on the basis of sample data. Right. So next हम लोग कर लेते हैं. It has been examined whether there is a significant difference between the population results, that is the hypothesized value, and the sample value. Okay, so let me just a moment. Just a moment. Okay, now let us consider the first part that we want to examine. मिस्टर उन्नी कृष्णन के माइंड में क्या है, कितना वो है कि सेल्स शुड बी 75. Is that okay? Right. So this is a perception. So this is a hypothesized value. Is that okay? Right. Suppose दो सिचुएशन ले रहे हैं. In the first situation, there is a sample of 60. Suppose जो सैंपल से रिजल्ट आया है, दिस रिजल्ट इज अराउंड 74. इज दैट ओके? एक दूसरा सैंपल लिया गया, दैट सैंपल इज इक्वली गुड ऑफ द सेम साइज 60 और यहां से रिजल्ट आया है 44. इज दैट ओके? ठीक. तो रिमेंबर ये हमारा सैंपल का रिजल्ट है, ये जो ये है, दिस इज द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू व्हिच इज supposed to be belonging to 1150 outlets. तो अगर हमारा 74 आया है तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि सेल्स ड्रॉप हो गई है, या आप इसका कुछ ऑल्टरनेटिव चीज भी बोल सकते हैं? बोलिए. लेट मी रिपीट. देखिए, ये जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है मिस्टर उन्नी कृष्णन के, उसमें जो एसर्शन है वो सिर्फ 60 आउटलेट्स का है या 1150 आउटलेट्स का? नो, 1150 आउटलेट्स का ना. वो तो वेंचुरा के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, मतलब. और हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो कितनों का है? 60 का है. राइट. सपोज हमने सैंपल्स, इसको सैंपल कह देते हैं, उससे जो हमारा रिजल्ट आया 74. 75 से डिफरेंट है, कम है. लेकिन क्या हम इसको देख के कह सकते हैं कि सेल्स में ड्रॉप हुआ है? नहीं कह सकते. आपका उसका लॉजिक क्या होगा कि देयर इज ए सैंपल and n number of samples are possible. It is highly possible ये जो डिफरेंस है ये छोटा सा डिफरेंस है, there may be some other results also. Is that okay? Right. So most probably इसमें आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है, there is no sales drop. Okay. You may use the word there may not be any sales drop. You will use the word there may not be. अब 44 के लिए आप क्या बोलते? There is a big gap, so you will use the word yes, there may be sales. Is that okay? Right? So दोनों जगह आप कंफर्म नहीं है, वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं? मे.
में आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? वी आर इन्फेरिंग अबाउट द पॉपुलेशन। इज दैट ओके? सो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि इतने जो ये डिफरेंस है, डिफरेंस इज बोथ वे। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 31 का है। सो आप कह सकते हैं दिस डिफरेंस इज स्मॉल। अभी हम लोग कोई टेक्निकल वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं। एंड दिस डिफरेंस इज लार्ज। ओके, तो आप कहें कि इतना स्मॉल डिफरेंट होने की चांसेस क्या है? बहुत हाई है, राइट? तो आप बोलेंगे देयर आर हाई चांसेस ऑफ सच ए डिफरेंस। कैन वी से दिस? और यहां के लिए आप लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? देयर आर वेरी लो चांसेस ऑफ हैविंग सच ए डिफरेंस। इज दैट ओके? राइट। सो we are we are not only considering the difference, we are considering the magnitude of the difference. Is that okay? And somehow हम इस चांस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा या इतना डिफरेंस होने का चांस क्या है, राइट? अगर उस डिफरेंस का चांस बहुत हाई आता है तो हम उस चीज को मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा, और अगर चांस बहुत ज्यादा आता है तो मान लेते हैं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप। इज दैट ओके? यस। ओके, देखिए हम लोग सैंपल ले रहे हैं, राइट? सैंपल में हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 74 आया है, और हमने हाइपोथेसाइज वैल्यू क्या ली है? तो आप कह सकते हैं कि इस सैंपल का जो रिजल्ट मिल रहा है वो एक्चुअल से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है? इतना छोटा मोटा डिफरेंस होने की चांस तो कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या हो जाएगा? देयर इज ए हाई चांस। इज दैट ओके? राइट। और यहाँ पे जो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस में आप ये कहेंगे कि इसे सिंपल हम लोग ले, मान लीजिए हम लोग यहाँ लेकर के चल रहे हैं, यहाँ की एवरेज हाइट कितनी है? सपोज यहाँ की एवरेज हाइट हमने मानी कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है उनकी, यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उनकी एवरेज हाइट 5 फीट 6 इंच, राइट? हमने सबकी हाइट मेजर करी, कुछ लोगों की करी, मान लीजिए 5-10 लोगों की करी, उनकी 5 फीट 7 इंच आई। तो आप कहेंगे इतना छोटा मोटा डिफरेंस तो हो ही सकता है। लेकिन अगर यहाँ पार्टिसिपेंट की हाइट 6.5 फीट आ जाए तो आप क्या कहेंगे? भाई इतना बड़ा डिफरेंस होने की चांसेस क्या है? नहीं है। नहीं है तो उस चीज को हमको क्या करना चाहिए? उस चीज को हमको मानना नहीं चाहिए। इज दैट ओके? अभी तक हम कोई टेक्निकल वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं। आई एम जस्ट इस्टेब्लिशिंग द कॉन्सेप्ट कि जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसको करते हैं। सो क्लियर हो गया सबको? राइट। सो नाउ, सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज टेस्टिंग ऑफ। तो इसके लिए हम लोग ने सबसे पहले क्या किया? वी फॉर्म अ हाइपोथेसिस। अब जैसे जो हमारा फर्स्ट केस है, सो देयर आर टू टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, there are two type of hypothesis. The first one is the null hypothesis, right? Null means zero. It is a hypothesis to be tested. Normally हम लोग null क्यों कहते हैं? It assumes no difference, right? Or it is to be nullified. दूसरी hypothesis क्या होती है? This is an alternative hypothesis which is opposite to the hypothesis that we are considering. Fine. And we are going with the SPSS. So basically हम लोग जो भी hypothesis बना रहे हैं, that should be compatible with that situation only. So अगर हम लोग फर्स्ट हाइपोथेसिस की बात करें, तो यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या है? यस, दिस इज, यहाँ पे क्या लेकर के चल रहे हैं? दिस इज 75, राइट? सो अगर ये सिचुएशन होगी तो आप क्या कहेंगे? क्लेम को राइट कहेंगे या रॉन्ग कहेंगे? क्लेम इज राइट। इज दैट ओके? What is the alternative view? Alternative view is mu should be less than 75, right? So आप ये कहेंगे claim is not right. There is a drop in the sale.
इज दैट ओके? राइट। सो इसको टेस्ट करने के लिए हमको कितने सैंपल्स की जरूरत पड़ेगी? ओनली वन सैंपल। दिस टाइप ऑफ टेस्ट आर नोन एज वन सैंपल टेस्ट। इज दैट ओके? सबको क्लियर है? नाउ वी कम टू द अदर टू सिचुएशंस। अब सिचुएशन नंबर 2 और सिचुएशन नंबर 3 रीड करिए। Normally, rural outlets are giving higher sales as compared to urban outlets. He want to reconfirm this trend. Is that okay? Right. So, ये जो हमको कंफर्म करना है, इसमें कंपेयर एक आप इसमें कंपैरिजन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कंपैरिजन किसके बीच में किया गया है? रूरल और अर्बन। तो हमको जो सैंपल चाहिए उस सैंपल में क्या इंक्लूड होना चाहिए? अर्बन आउटलेट्स भी होना चाहिए और रूरल। इसका मतलब वी आर बेसिकली मीनिंग विद टू सैंपल्स। इज दैट ओके? राइट। सेकेंड सिचुएशन में देखें, ही वांट्स टू एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टीजमेंट कैंपेन। ठीक, एंड इट इज बिलीव्ड दैट एडवर्टीजमेंट कैंपेन हैज इमीडिएट इफेक्ट। तो ये एडवर्टीजमेंट कैंपेन कब लॉन्च किया गया है? सेकेंड क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर टू सेकेंड क्वार्टर तो सेल्स इंक्रीज हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे कंपैरिजन किसका किया जा रहा है? फर्स्ट क्वार्टर सेल्स का वर्सेस सेकेंड क्वार्टर सेल्स का। अगेन वी हैव टू सैंपल। इज दैट ओके? राइट। सो ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसमें आते हैं? दे बिलोंग्स टू टू सैंपल टेस्ट। और जहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं या डिफरेंस एग्जामिन कर रहे हैं। इज दैट ओके? अब अगर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस देखें, देखिए यहां पे दो तरह के आउटलेट्स लिए गए, रूरल आउटलेट्स वर्सेस अर्बन आउटलेट। सो ऑब्वियसली जो भी रूरल आउटलेट को बिलोंग करता है वो अर्बन आउटलेट को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब सैंपल्स का नेचर क्या है? दे आर इंडिपेंडेंट सैंपल्स। इज दैट ओके? दूसरी जगह हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कैंपेन कंपेयर कर रहे हैं। तो माय क्वेश्चन इज, here we are comparing quarter 1 sale and the quarter 2 sales. So इसमें हमको इस वैल्यू को मतलब 67 को 77 से कंपेयर करना चाहिए, और इट इज इमटेरियल कि हम 67 को किसी भी वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। यस पार्टिसिपेंट्स, सेम होना चाहिए। सेम क्यों होना चाहिए? बिकॉज देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, राइट? अदर फैक्टर्स क्या हो सकते? हो सकता आउटलेट 1 रूरल एरिया में हो, आउटलेट 2 किसमें हो सकता है? अर्बन एरिया में हो सकता है, नंबर 1। दूसरा हो सकता है रूरल आउटलेट रोड हेड, सॉरी, आउटलेट नंबर 1 रोड हेड पे हो, आउटलेट नंबर 2 क्या हो? किसी रिमोट एरिया में हो। तो ऑब्वियसली जो रोड हेड पे है उसकी सेल्स क्या होगी? ज्यादा होगी। तो देयर मे बी अदर रीजंस आल्सो दैट मे हैव सम रिजल्ट। एट प्रेजेंट हम लोग एग्जामिन किसको कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ इंपैक्ट एग्जामिन कर रहे हैं। हम लोग इंपैक्ट एग्जामिन कर रहे हैं जस्ट एडवर्टीजमेंट कैंपेन का। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू कंपेयर sales of the first quarter, sales of the first outlet with respect to sales of the first outlet only. एक डेटा हमारा फर्स्ट क्वार्टर से मिलेगा, दूसरा किससे मिलेगा? सेकेंड क्वार्टर से मिलेगा। इसी तरह अगर हम 10th आउटलेट ले रहे हैं तो हमको कंपेयर क्या करना चाहिए? 10th आउटलेट रिमेन्स द कॉमन, उसी का फर्स्ट क्वार्टर सेल एज वेल एज सेकेंड क्वार्टर। इज दैट ओके? So these type of samples are known as paired sample or the dependent sample. सबको क्लियर हो गया? ओके। सो ये हमारा सेकेंड हो गया। थर्ड जो फोर्थ पार्ट है दैट आई एम नॉट कवरिंग, दैट विल बी कवर्ड अंडर एनोवा, जो आपका लास्ट टॉपिक होगा। तो ये डेटा हम आपसे शेयर कर देंगे। यू कैन प्रैक्टिस दिस ऑन फॉर एनोवा, यू कैन प्रैक्टिस द फोर्थ। इज दैट ओके? तो सिनेरियो इज क्लियर सबको? सो नाउ वी आर कमिंग बैक टू द नोट्स अगेन। तो हम लोग सेकंड सिचुएशन पे आ रहे हैं।
सेकेंड सिचुएशन में कंपेयर किसको किया गया है, अर्बन आउटलेट्स एंड रूरल आउटलेट्स. So H naught, since we are formulating it as per the perspective of the SPSS, right? So इसमें हम लोग क्या लेकर के चल रहे हैं, H naught हो गया म्यू आर इक्वल टू म्यू यू. मतलब एवरेज सेल ऑफ रूरल आउटलेट इज इक्वल टू एवरेज सेल ऑफ द अर्बन आउटलेट. देयर इज नो सब्सटेंशियल डिफरेंस. सो इफ दिस इज द थिंग, तो हम लोग क्लेम या परसेप्शन को क्या मानेंगे, claim is wrong, though it goes against to the perception. But यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग द नल डिफरेंस. सो एसपीएसएस में जो टेस्ट बनाए गए हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि नल हाइपोथेसिस में डिफरेंस क्या लिया गया है, विद नो डिफरेंस. ओके, H1 क्या हो जाएगा, म्यू आर इज ग्रेटर देन म्यू यू. इट मीन्स क्लेम इज राइट. Is that okay? Right? Now here we are considering two samples. इन टेस्ट का नाम हम लोग क्या कर सकते हैं, two samples. और अभी हम लोग ने डिस्कस किया, this type of samples are known as two independent sample test. Is that okay? सबको क्लियर है? ठीक. जो थर्ड सिचुएशन है जिसमें हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टीजमेंट कैंपेन. सो बेसिकली हम लोग कंपेयर क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एवरेज सेल ऑफ द सेकेंड क्वार्टर विथ एवरेज सेल ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर. इज दैट ओके? सो एज पर द कॉन्सेप्ट जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, बिकॉज इन द सॉफ्टवेयर वी कंसीडर द नल डिफरेंस ओनली, तो हम लोग ले रहे हैं म्यू Q2 इक्वल टू म्यू Q1. दोनों में देयर इज नो डिफरेंस. सो इफ देयर इज द थिंग, तो आप लोग एडवर्टीजमेंट कैंपेन को क्या कहेंगे, एडवर्टीजमेंट इज अ सक्सेस और अ फेल्योर. फेल्योर, राइट? ये सेल्स को बढ़ा नहीं पाया, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स रिमेन द सेम. इज दैट ओके? H1 क्या हो जाएगा, अपोजिट टू दिस, so this would be mu Q2 is greater than mu Q1. Means there is a substantial increase, so you can say that advertisement is a success. Here also we are using two samples, but two samples are dependent. So this is known as two dependent samples. इसका दूसरा नाम भी होता है, they are also known as paired samples. Is that okay? So concepts are clear up to this level. Fine. So this is related to the hypothesis that we have discussed. जो इससे पहले हम लोगों ने hypothesis डिस्कस करी थी, हम लोगों ने hypothesis फॉर्मुलेट कर. फाइन. अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं. We want to formulate a test. Fine. So टेस्ट में जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, we examine the probability or the chances of such a difference. हम लोग यहाँ पे probability कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे probability कैलकुलेट करेंगे. ओके? अब इसकी हमको जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज वी हैव ए सैंपल डेटा, और हम लोग कर किसके ले रहे हैं, पॉपुलेशन के लिए. सो वी कैन हैव अ नंबर ऑफ सैंपल्स ऑल्सो. सो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं थ्रू सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. हम लोग स्टैटिस्टिक्स में इसको डिटेल में पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिक्स क्राउड है, तो इसलिए हम लोग इसको ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहे हैं. ओके, सो वी कंसीडर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. और ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किसका हम लोग कंसीडर करते हैं, जो हमारी सैंपल स्टैटिस्टिक्स है, जो सैंपल से वैल्यू है, उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वी कंसीडर. इज दैट ओके? सो इसमें जो सिचुएशंस आती हैं, देयर आर सर्टेन एजम्पशंस. एजम्पशंस अगर हम लोग पहला एजम्पशन ले रहे हैं, नंबर 1, कि जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इज नॉर्मल. राइट? जो हमने सैंपल लिया, अगर ये पॉपुलेशन नॉर्मल उससे आई हुई है, तो ये जो एक्स बार है, इट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, मींस एक नॉन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है. लेकिन अगर हम इस एजम्पशंस को नहीं मान सकते हैं कि पॉपुलेशन मे नॉट बी नॉर्मल, सो ये
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या एक डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करते, राइट? सो देयर आर टू टाइप ऑफ टेस्ट जहां पे हम लोग इस टाइप के एजम्पशंस को ले लेते हैं नॉर्मलिटी रिलेटेड. दे आर नोन एज पैरामेट्रिक टेस्ट, और दूसरी तरफ क्या होते हैं? दे आर नॉन पैरामेट्रिक, right? So we have two type of tests. One is parametric test, other is non-parametric test. Is that okay? So आपको ये कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करे ब्रॉडली आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. Is that okay? So first we have to decide whether we should go for the parametric test or we should go for the non-parametric test. Is that okay? So इसको आगे आने से पहले let us discuss some concepts back. नंबर 1, इसमें हम लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं, वर्ड इज वी रिजेक्ट और वी फेल टू रिजेक्ट. वी नेवर यूज द वर्ड प्रूफ और डिस्प्रूव. एनीवन, व्हाई वी शुड यूज रिजेक्ट एंड फेल टू रिजेक्ट एंड वी शुडंट यूज प्रूफ एंड नॉट प्रूफ. एनीवन, बिकॉज प्रूफ इज ए बिग वर्ड, राइट? और हमारे पास अगेन वी आर जस्ट इन्फरिंग ओनली. सो since proof is a big word, it can be there only if we have data from the population. So from sample we cannot prove or disprove, we just reject or fail to reject. Is that okay? Right. So again, since much time is not there and I have to cover both, तो जस्ट हम कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहे हैं, डिटेल में हम लोग नहीं कर रहे हैं. दैट आर द स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट. सो यहाँ पे हम लोग एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. जस्ट अ मोमेंट. ओके, सपोज इसमें आप लोग ज्यादा बॉदर ना करिएगा. आई एम ड्रॉइंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. Suppose this is the position of our hypothesized value, that is 75. Is that okay? Right. अगर 74 होगा तो 74 is very close to 75. Okay? चलिए, अगर हम लोग इसकी probability calculate करें, what is the probability of राइट? हम एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें. सपोज ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें कि इस डिफरेंस की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. एक सिचुएशन ये है. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ये जो एरिया है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच ए डिफरेंस, राइट? यहां पे 74 वैल्यू हुई है. इन सम अदर सिचुएशन, सपोज the hypothesized value is again 75. सपोज यहाँ पे हम वैल्यू ले रहे हैं 44. तो ऑब्वियसली 44 वुड बी डिस्टेंट फ्रॉम 75, राइट? अगेन हम लोग इसकी एक्सट्रीम चांसेस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं. तो दिस इज द एरिया और दिस इज द प्रोबेबिलिटी. ओके, आप देख रहे हैं ये दिस एरिया इज बिग. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा डिफरेंस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दिस प्रोबेबिलिटी इज हाई. और यहाँ पे इस डिफरेंस होने की प्रोबेबिलिटी इज लो. इज दैट ओके? राइट. सो ये जो हाई और लो है, ऑब्वियसली इट शुड बी कंपेयर्ड विद सम वैल्यू. सपोज हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं एक लेवल से. सपोज हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं? 5% लेवल से कर रहे हैं. दिस इज टेक्निकली नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट? इट मींस अगर चांसेस की प्रोबेबिलिटी 5% से ज्यादा हो रही है तो उसको हम लोग कह देंगे दिस इज ए बिग प्रोबेबिलिटी. और अगर 5% से कम हो रही है तो उसको हम क्या कह देंगे? दिस इज ए स्मॉल प्रोबेबिलिटी. इज दैट ओके? राइट. सो सपोज इस एग्जांपल में
मान लीजिए इस डिफरेंस होने की प्रोबेबिलिटी 0.001 आ रही है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, और इस डिफरेंस होने की प्रोबेबिलिटी सपोज 0.233 आ रही है, राइट? So 0.001 is a low probability and 0.233 is a big probability. अगर इसको हम 0.05 से कंपेयर करें तो this value is less than 0.05 and this value is greater than 0.05. Is that okay? Right. So ये जो probability calculate करी जाती है, ये हम लोग obviously manually नहीं करेंगे. It is being provided in the software and this probability is broadly known as p-value. Though the technical definition of the p-value is different, but software जो हम लोग को p-value provide करता है, it broadly reflects the chances of having such a difference. Is that okay? So means here the p-value is less than alpha and here the p-value is greater than alpha. So p-value is less than alpha, it means we are rejecting H0, and if p-value is greater than H0, then we are not rejecting the null hypothesis. Is that okay? Right. So broadly यहाँ पे हमने आपको उस तरह से समझाया गया है. Fine. ठीक. Now taking decision, we compare the observed value of the test statistic. अभी हम आपको शो करेंगे with that the critical value और alternative value क्या है, alternative approach क्या है, there is a p value. अगर p value बहुत ही small होती है तो उसको हम reject करते हैं, अगर small नहीं होती है तो we decide otherwise. Okay, हम आपको एक टेस्ट रन करा के दिखा देते हैं जिसके थ्रू these things should be. Okay. So first before moving forward, let us examine whether the data that we are considering वो नॉर्मलिटी फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है. आप लोगों ने कल डिटेल में करा है नॉर्मलिटी टेस्टिंग, राइट? आप लोगों ने कौन कौन से टूल्स पढ़े होंगे, किसी को याद है? एक तो आपने हिस्टोग्राम से किया होगा, दूसरा हो सकता है स्टेम एंड लीफ से किया हो, बॉक्स प्लॉट से भी किया जाता है. इसके अलावा नॉर्मल पीपी प्लॉट, नॉर्मल क्यूक्यू प्लॉट और डी ट्रेंडेड पीपी प्लॉट, ये आपने करा है. आई एम नॉट गोइंग विद देम. हम उसमें शायद आपने वाला टेस्ट नहीं किया होगा, दैट टेस्ट इज देयर, दैट इज द कोलमोगोरो-सिब्रेनो टेस्ट. उसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. ओके, सो so we go to analyze now. Then नहीं, अभी हमने नहीं शेयर किया, हम आपको उसके बाद शेयर कर देंगे. ओके, सो वी गो टू डिस्क्रिप्टिव एंड देन वी गो टू द एक्सप्लोर. ये आपने कल भी करा होगा. सपोज वी वांट टू एग्जामिन, इट इज जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन, हम सब नहीं करेंगे, एक हम करके आपको शो कर रहे हैं. सपोज आई एम टेकिंग द सेकेंड क्वार्टर. इज दैट ओके? राइट. सो स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने सब करा ही है, हम इसको नहीं रिपीट कर रहे हैं. प्लॉट्स में भी आपने करा, इसमें हम नॉर्मलिटी प्लॉट्स ले रहे हैं. बाकी आपके पास स्टेम एंड लीफ हिस्टोग्राम तो है, राइट? सो दिस इज द आउटपुट जो आपने कल डिस्कस करा होगा. हियर आई वांट टू डिस्कस ओनली दिस पार्ट. दिस इज द टेस्टिंग ऑफ नॉर्मलिटी. इसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं. इज दैट ओके? राइट. सो देयर आर टू टेस्ट, कोलमोगोरो-सिब्रेनो एंड शेपेरोविल्स. तो देयर आर नंबर ऑफ टेस्ट. हम लोग जब पाइथन में कराते हैं तो बहुत सारे टेस्ट है, डी ऑगस्टन टेस्ट है, डार्लिंग एंडरसन टेस्ट है, देयर आर एन नंबर ऑफ टेस्ट, राइट? बट एट प्रेजेंट सिंस वी आर फोकसिंग ऑन एसपीएसएस ओनली, तो हम लोग ये दो टेस्ट करते हैं. दोनों का अपना मेरिट है, अपना डिमेरिट है. जो कोलमोगोरो-सिब्रेनो टेस्ट है, इट इज लेस पावरफुल. शेपेरोविल्स इज अ बेटर टेस्ट, मोर पावरफुल. लेकिन लार्ज सैंपल के लिए अगर उसमें रैंक्स कॉमन हो जाती हैं तो शेपेरोविल्स में प्रोवाइड नॉट सो गुड रिजल्ट, राइट? तो आपको डिफरेंट टेस्ट इंट्रोड्यूस कराने का ऑब्जेक्टिव खाली ये है कि देयर इज नॉट वन टेस्ट और देयर इज नो एब्सोल्यूट और गॉस्पेल टेस्ट जो सबको कवर कर ले.
तो हमेशा मान करके चलिएगा हर टेस्ट के अपने एजम्पशंस हैं, हर टेस्ट के अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, राइट। एनीवे, सो हम लोग इसको दोनों को एक ही लेवल पे डिस्कस करते हैं विदाउट गोइंग इन द टेक्निकल डिटेल्स। यहाँ पे जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस लिया है, सिंस हम लोग नॉर्मलिटी एग्जामिन कर रहे हैं, तो व्हाट इज आवर हाइपोथेसिस? दैट आवर डेटा इज फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। इज दैट ओके? आप लोग अगर ये पी वैल्यू को देखिए, दिस इज द पी वैल्यू ऑफ कोलमोगोरोव-सिमिनोव टेस्ट एंड दिस इज द पी वैल्यू ऑफ शेपेरोव-विल्स टेस्ट। आपको वैल्यूज दिख रही हैं? ये वैल्यूज को आप 0.05 से कंपेयर करिए, तो 0.05 से बड़ी है या छोटी है? बोथ वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0.05 सेपरेटली। इज दैट ओके? इसका मतलब हम क्या करेंगे? मतलब देयर आर 20% चांसेस कि वो डिफरेंस इनसिग्निफिकेंट है, देयर आर 48% चांसेस और 49% चांसेस, मींस देयर इज नो रीजन टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। तो अगर हम लोग रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिटेन कर रहे हैं। रिटेन करने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन किसको फॉलो कर रहा है? नॉर्मल। आप लोग जब दूसरा डेटा सेट देखेंगे तो उसमें ये जो पी वैल्यू है, ये पी वैल्यू क्या होगी? 0.05 से छोटी होगी। इज दैट ओके? सबको क्लियर है? राइट। सो फर्स्ट वी एग्जामिन वेदर वी शुड यूज पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, राइट। ये जो आपको पहला डेटा सेट हमने शेयर किया है, इट इज रिलेटेड टू पैरामेट्रिक टेस्ट, और जो सेकेंड हम आपको शेयर करेंगे, सेकेंड सिचुएशन, दैट इज रिलेटेड टू नॉन पैरामेट्रिक। फाइन। So we go to analyze and then we go to compare, right? So here we have certain options. So इसमें कौन सा टेस्ट हमको यूज करना चाहिए? हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं म्यू 75 है कि नहीं। अभी हमने डिस्कस करा कि दैट इज अ वन सैंपल टेस्ट, सो वी आर गोइंग टू यूज वन सैंपल टी टेस्ट। ओके। स्टैटिस्टिक्स के अलावा जो लोग हैं, इसमें किसी ने मतलब इस टेस्टिंग को अगर पहले करा, जेड टेस्ट आपने यूज किया है किसी ने स्टैटिस्टिक्स वालों के अलावा? तुम तो उसी में आते हो, राइट? ओके, तो चलिए हम लोग जेड टेस्ट को इग्नोर कर दे रहे हैं। कंडीशन जेड टेस्ट की क्या होती है? पॉपुलेशन एसडी सिग्मा शुड बी नोन। एसपीएसएस में बिलीव किया जा रहा है कि जो भी डेटा आप एंटर करेंगे वो पॉपुलेशन का नहीं है, वो किसका है? सैंपल का है। तो सैंपल का डेटा तो सिग्मा और पॉपुलेशन एसडी इज नेवर नोन, so that's why that test is not being provided in the SPS. Is that okay? चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वार्टर को कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज द टिपिकल डायलॉग बॉक्स ऑफ एसपीएसएस। हमेशा जब भी आप एसपीएसएस ओपन करेंगे, यू गेट दिस टाइप ऑफ डायलॉग बॉक्स। जो भी वेरिएबल्स आपके डेटा शीट में होंगे, दे आर ऑन द लेफ्ट साइड। इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को जिनको हमको एनालाइज करना, हम ट्रांसफर किसमें करते हैं? राइट साइड में करते हैं। इज दैट ओके? सो अगेन दिस इज जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन, हम सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर के लिए कर रहे हैं। तो हमने सेल्स ऑफ द आउटलेट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ले लिया। इज दैट ओके? व्हाट इज द हाइपोथेसाइज वैल्यू? हाइपोथेसाइज वैल्यू क्या है? 75 है, तो वी एंटर द हाइपोथेसाइज वैल्यू। फाइन। और हमने यहां पे ओके प्रेस कर दिया। ओके, द रिजल्ट्स आर देयर। इस रिजल्ट से आपको क्या वैल्यू मिल रही है? $72, और ये वैल्यू पॉपुलेशन की है, सैंपल की है? सैंपल की है। तो दिस इज द एस्टिमेट और द वैल्यू ऑफ द सैंपल स्टैटिस्टिक। क्या हम इस वैल्यू को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि सेल्स ड्रॉप हुई है? वी कांट डिसाइड। व्हाई वी कांट डिसाइड? बिकॉज दिस इज फ्रॉम सैंपल। एग्जामिन करेंगे, इस जो वैल्यू 72 मिल रही है, इसका 75 से जो डिफरेंस है, उसके होने की चांसेस क्या है? सो फॉर दैट वी कम टू द टेस्ट, दैट इज द वन सैंपल टेस्ट। इन्होंने जो वैल्यू दी है, ये टू टेल टेस्ट की वैल्यू दी है। ये भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग पहले हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हाट डू वी बेसिकली मीन टू टेल टेस्ट एंड वन टेल टेस्ट? ओके, सपोज वी एग्जामिन mu 75, right? Now alternative can be
म्यू कैन बी लेस देन 75, जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं. अनदर ऑल्टरनेटिव कैन बी म्यू ग्रेटर देन 75, और तीसरा क्या हो सकता है, म्यू नॉट इक्वल टू 75. ठीक. अब ये कैसे डिसाइड करते हैं? मान लीजिए जैसे पहला केस तो आपको क्लियर है जो हम लोग कर रहे हैं, देयर इज अल्टरनेटिव व्यू दैट देयर इज अ ड्रॉप इन द सेल. अगर अल्टरनेटिव व्यू होता देयर इज अ इंक्रीज इन द सेल, तो हम किस हाइपोथेसिस को लेते हैं? सो हम लोग इस हाइपोथेसिस को लेते हैं. एंड सपोज नो डायरेक्शन इज गिवन. आप चैलेंज कैसे करते हैं कि 75 है या 75 नहीं है? नहीं होने का मतलब 75 से ज्यादा भी हो सकती है, 75 से कम भी हो सकती है, राइट? सो इन दैट केस वी टेक अप एस नॉट एज नॉट इक्वल. इज दैट ओके? राइट. सो अब जैसे हम लोग पहला टेस्ट ले रहे हैं, सो प्राइमरली हम लोग करते क्या है इसमें, ये हमारा जो सैंपल स्पेस होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. वन पार्ट इज रिलेटेड टू रिटेनिंग, जिसको हम लोग कहते हैं रिटेनिंग एच नॉट, दैट इज द एक्सेप्टेंस रीजन, एंड द अदर पार्ट इज रिलेटेड टू रिजेक्टिंग एच नॉट, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल, राइट? मतलब ब्रॉडली इसको समझ लीजिए. तो यहाँ पे जो रिजेक्शन हो रहा है एच नॉट का, ये लोअर वैल्यू पे हो रहा है, राइट? सो इज इट क्लियर? सेकेंड केस में जो रिजेक्शन होगा एच नॉट का, वो किधर होगा, लोअर वैल्यू पे होगा या अपर वैल्यू पे होगा? ऑब्वियसली वो अपर वैल्यू पे होगा, रिजेक्शन ऑफ एच नॉट. इज दैट ओके? राइट. और सेकेंड केस में नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, it will be on both the direction, much lower as well as much upward. So this is known as tail. क्योंकि इन दोनों में वन टेल इन्वॉल्व हो रही है, तो दे आर नोन एज वन टेल टेस्ट. और ये क्या कहलाएगा, दिस इज टू टेल. इज दैट ओके? ब्रॉडली. So whenever we consider not equal to, we go for two tail, right? और बस आपको इंफॉर्मेशन के लिए, जो p वैल्यू ऑफ टू टेल टेस्ट होती है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p वैल्यू ऑफ वन टेल. एंड p इज द प्रोबेबिलिटी. तो चाहे हम राइट की प्रोबेबिलिटी निकालें या लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. इज दैट ओके? व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस? सॉफ्टवेयर हमको जो p वैल्यू प्रोवाइड करता है वो एक चीज की प्रोवाइड करेगा. सपोज टू टेल की प्रोवाइड कर रहा है, एंड योर टेस्ट डिमांड कि हमको वन टेल की चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं, उसको टू से डिवाइड करके कर. इज दैट ओके? रिलेशन क्लियर है? कहीं पे वन टेल की अगर p वैल्यू दे रखी है, हमको टू टेल के लिए चाहिए, तो हम उस p वैल्यू को डबल कर देंगे. अगर टू टेल के दे रखी है, वन टेल के लिए चाहिए, तो हम उसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, राइट? So again we come to the result. Okay, right? सबको क्लियर हो गया? ठीक. So why we are discussing this? यहाँ पे जो p वैल्यू दे रखी है, टू टेल के दे रखी है, ये वैल्यू क्या है, 0.021 है. हमको चाहिए वन टेल के लिए, तो वन टेल के लिए p वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 0.021 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी. So it is equals to 0.0105. Is that okay? Right? And this p value is less than 0.05. Fine. So हमारा क्या डिसीजन होगा, रिजेक्ट एच. ओके. और अगर इसको हम लोग कंसेप्चुअली डिस्कस करें, तो 75 से 72 का डिफरेंस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.01 है. तो 0.01 इज ए कॉमन थिंग और ए रेयर थिंग. दिस इज अ रेयर थिंग. तो कोई भी चीज रेयर चीज पे एक्सेप्ट नहीं करी जाती है.
रिटेन नहीं करी जाती, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर। इज दैट ओके? तो आप लॉजिक यूज करिए या एक स्टैंडर्ड रूल यूज करिए। अगेन अल्फा हम लोग 5% लेके डिस्कस कर रहे हैं। अल्फा हमेशा 5% होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सिचुएशन, जिसको अभी हम लोग कवर नहीं कर रहे। इज दैट ओके? सबको क्लियर हो गया? So you can repeat this test for the different data set. So this is related to one tail test. Any question? Is it clear? Speak a bit loud, please. So when the p-value is lesser than 0.05, so then we are rejecting the hypothesis. Actually, we reject H naught at 5% level of significance, right? Means it also tell us what is the level of significance. Level of significance can be less than 5% also. It can be even 1%. It can even be 10% also. So there are a full discussion on what is the appropriate value should be taken. But because of the paucity of time, let us believe that 5% काम चलाओ हो सकता है. Okay, हाँ, yes. Sir, it depends solely on us that we have to decide like. No, there is a definite logic. Actually, there are two types of errors, type 1 error and type 2 error. If type 1 error is critical, we go with the low value of alpha. And if type 2 error is critical, then we can go for higher value of alpha, right? 5% is normally the default value. जो नॉर्मल हम लोग रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं वो 5% करते हैं. तो 5% इज ए कंप्रोमाइज इन बिटवीन दिस टू. ओके, ठीक है. यस, ओके. It is related to explain this test. Okay. So, Ms. Damni, should the complete test? Which test? You can write again. Which test? Kolmogorov, Smirnov, or one sample t test? Okay. One sample t test. Just I am repeating that. We go to analyze. Is that okay? Then we go to compare mean. Then we go to one sample t test. Is that okay? Right. Suppose instead of 75, suppose we want to consider it at 74. Is that okay? So H naught is mu equals to 74, right? Every other thing remains the same. So now this is the result. Obviously 72 remains the same. Now what is the p value? P value देखिए कितनी मिल रही है आपको. Yes, p value is 0.119. Again, this is for the two tail test. For one tail test, it would be 0.119 divided by 2. So it is approximately 0.06, isn't it? And 0.06 is greater than, right? So it means we are not rejecting the null hypothesis. So if this is a situation, then we can say that the claim of sale of 74,000 is correct, right? And there is no significant drop in the sale. Is that okay? आपने यहाँ देख भी लिया, difference has been changed, so p value has also been changed. Is that okay? Fine. Okay. Now, just a moment. Now, I am going to the second test where we are comparing
sales of the rural outlets as compared to the sales of the urban outlets. Okay. So for that, we should go to analyze, then we go to compare mean. Now, there are two options. One is independent sample, other is paired sample. We have already discussed, in this case, we will be using independent sample t-test. Is that okay? Right. So what is the test variable? Suppose we want to compare it for the first quarter. So this is the first quarter sale. And the second one is the grouping variable, means the variable that is used to create the group. Here we want to compare urban और rural को compare करने जा रहे हैं. तो यहाँ पे हम किसको ले लें? Type of outlet को ले लें. So type of outlet is being entered into the grouping variable. आपको दिखा? आपसे डिमांड क्या कर रहा है? You have to define the group. हम लोगों ने कोड्स क्या ले रखे हैं? 1 for urban and 2 for rural. It doesn't matter whether you write 1 and 2 or you write 2 and 1. It doesn't matter because t-test is symmetrical. So whether you go on the right side or you go on the left side, things remains the same. Okay. And then we press OK. Is that okay? Results are there. ये हम लोग फर्स्ट क्वार्टर के लिए कर रहे हैं, इसको रिपीट कर लेंगे किसी और क्वार्टर के लिए. As from the sample, ये वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है? सॉरी, urban rural outlets are giving sale of 78,000, urban outlets are giving sales of 67,000. तो आपको डिफरेंस, सब्सटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? राइट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये तो हमको लग रहा है कि whether this difference is significant or not as compared to the test statistics that we are going to consider. So इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? We have to examine the p value. So इसके लिए हम आपको एक चीज पहले कर ले. हम इसको एक बार फिर से रन कर रहे हैं फॉर ए पर्पस. एक पर्पस से हम कर रहे हैं, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे. इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, ये हम थर्ड क्वार्टर पे रन कर रहे हैं. ओके. राइट. सो यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? वन वैल्यू इज 64,000, रूरल आउटलेट्स की, अर्बन आउटलेट्स की क्या है? 61,000. डिफरेंस इज देयर. वी वांट टू एग्जामिन whether this difference is significant or not. Is that okay? Right. So again हम लोग इस p वैल्यूज पे आ रहे हैं. अब यहाँ पे आपको एक p वैल्यू दिख रही है या दो p वैल्यू? There are two p वैल्यू. Why there are two p वैल्यू? ये जो फर्स्ट p वैल्यू है, इट इज फॉर इक्वल वेरिएंस एज्यूम, और दूसरी p वैल्यू क्या है? इक्वल वेरिएंस नॉट एज्यूम. अगर आप लोग इस नोट्स पे जाएंगे, so it is there on the slides also, right? There are two type of tests. Number one, when population standard deviations are unknown but equal, और दूसरा क्या है? Population deviations are unknown but unequal, right? So we have different test statistics, so that's why we are getting two different results. Is that okay? So first we have to decide whether we should go for equal, इसको बाद में पढ़ें, right? Whether we should go for equal variance or we should go for unequal variance. So for that, yes. Right? There are two results. The first one is equal variance assumed. The second thing is equal variance not assumed. So for that, अगर आप इसको देखें तो there are two part of the test. ये पहला पार्ट है और दूसरा क्या पार्ट है? ये पार्ट. जो पहला पार्ट है that is related to Leibniz test of equality of variance. ये दिख रहा है, right? So it is for, here we examine whether variances are same or not. Is that okay? Right. So here you follow the p value for the Leibniz test. ये जो p value 0.05 है, it is greater than 0.05. 0.052 is greater than 0.05. बड़ी है उससे, right? इसका मतलब वेरिएंसेस को आप इक्वल कहेंगे या वेरिएंसेस को अनइक्वल कहेंगे?
variances are equal. Is that okay? Right? As per the null hypothesis. Since variances are equal, तो हमको किसको कंसीडर करना चाहिए? किसको कंसीडर करना चाहिए? We should consider the first row. और फर्स्ट रो से p वैल्यू कितनी मिल रही है? 0.149. ये हमको टू टेल के लिए मिल रही है. अगर हम वन टेल के लिए करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट इज 0.075. ये मिला? So this 0.075 is greater than 0.05. Is that okay? Right? So हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे कि रिजेक्ट नहीं करेंगे? रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज ए हाई पी वैल्यू. अगर हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो व्हाट वाज द नल हाइपोथेसिस? आपको याद है नल हाइपोथेसिस हम लोगों ने क्या ली थी? व्हाट वाज द नल हाइपोथेसिस? दैट average sale of rural outlets is equal to average sale of the urban outlet. So we can say that there is insignificant difference between sales of the rural outlet and sales of the urban outlet. दो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है, but this difference is insignificant. Is that okay? सबको क्लियर हो गया? So यहाँ पे हम कहेंगे कि जो नॉर्मली ट्रेंड था कि रूरल आउटलेट्स आर गिविंग हायर सेल एज कंपेयर टू अर्बन आउटलेट, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा. ओके, सो deliberately I have used this just to explain the concept of equality of variances. अगर हम लोग फर्स्ट क्वार्टर के लिए कंसीडर करें, फर्स्ट क्वार्टर में आपको पी वैल्यू कितनी दिख रही है? पॉइंट. सबसे पहले हम लोग कंसीडर करें, वी आर कंसीडरिंग द लेवने पी वैल्यू. तो दिस पी वैल्यू इज 0.046. दिस इज ग्रेटर देन 0.05. ग्रेटर देन 0.05 मीन्स variances are not different. Variances are not different, so we will be considering the first result. तो फर्स्ट रिजल्ट से हमको क्या वैल्यू मिलेगी है? 0.000. राइट? इसको हाफ करेंगे तो और छोटी हो जाएगी, and this value is less than 0.05. Less than 0.05 का मतलब रिजेक्ट. Is that okay? Right? So यहाँ पे आप कहेंगे yes, claim is right, perception is right, that rural outlets are giving higher sales as compared to the urban outlets. Is that okay? So this is related to two independent sample tests. Questions जो हो आप पूछ लीजिए. माइक. Speak louder, please. Okay. Right. For that purpose, I am taking up the second result, because in that result, as you see, there are two p-values. One is 0.49, other is 0.115. Is that okay? So now the question arises whether we should take 0.149 or we should take 0.115. So this 0.149, if you go this way, it is related to equal variance ratio. आपको दिख रहा है फर्स्ट लाइन में, और सेकेंड लाइन का रिजल्ट किसके लिए है? इट इज फॉर unequal variance or equal variance cannot be achieved. Is that okay? So the question arises, which value should be taken? So for that, first we have to decide whether variances are equal or not. So इसमें हम लोग क्या करते हैं? We perform Levenet test, right? हम आपको बता भी दे रहे हैं, right? So here we are using the Levenet test. It is related to homogeneity of variances, means variances are equal or variances are not. Is that okay? Right. So for that we use Levenet test. Again,
if we consider the p value of the Leibniz test, अगर लेवनेट टेस्ट की p वैल्यू 0.05 से कम आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे. रिजेक्ट करने का मतलब है वेरिएंसेस आर अनइक्वल. इज दैट ओके? राइट. अदरवाइज variances are equal. Is that okay? Right. So for that purpose, हम लोगों ने सबसे पहले लेवने टेस्ट की पी वैल्यू देखी. लेवने टेस्ट की पी वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.052 दे रखी है. This is greater than 0.05 means it is not so small. Not so small means we cannot reject the null hypothesis. If we cannot reject the null hypothesis, it means variances are equal. Since variances are equal, so we should have interpretation of which result? The first. Okay. Right. अगर ये p वैल्यू 0.05 से छोटी आती, इसका मतलब वेरिएंसेस अनइक्वल है, तो हम किसका इंटरप्रिटेशन करते? 0.115. क्लियर? Sir, we are talking about the variances in respect of. There are two groups. Yeah. Group 1 and group 2. So obviously उनके variances same भी हो सकते हैं और variances अलग हो सकते हैं because they belong to the independent populations, right? Rural population versus urban population. So suppose sigma 1 is the population variance. Just a moment. Okay. आप जैसे इसमें देखें, इसमें जो हम लोग ने वर्ड यूज किया है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, राइट? दीज आर द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन. तो देयर आर टू ग्रुप्स, दोनों के वेरिएंसेस सेम हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो. ओके. या यस, एनी अदर क्वेश्चन? So when we apply this two test, so we have to apply this hidden test for them. No, whenever we have, yes, whenever we have to apply to independent sample test, we have to interpret Leibniz test first, then only we can go to the second one. Okay. Any other question? Clear? Okay. So now we come to the another test that is known as pair T test, जिसका हमने आपको एग्जाम्पल लिया था. So now we are considering the pair T test. First, yes. So here we have two tables. So in one we will explain the opportunity in the other one. So but one question also here comparing the sales in urban and rural. So Okay. The first result is related to the first quarter, right? And the second result is related to the third quarter. So it might be possible in the first quarter, there may be significant difference. In the third quarter, there may not be significant difference. Okay. Means this is not a consistent pattern कि हर क्वार्टर में डिफरेंस हो ही रहा है. ओके, राइट. वो दोनों अलग अलग डेटा है. सेकेंड वाला हमने इसलिए यूज किया बिकॉज अगर हम इसको यूज करते तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट वी विल बी हैविंग द सेपरेट पी वैल्यू. इसको हमने इसलिए यहां से शो. ओके. ऑनलाइन पे भी एक क्वेश्चन, the same question that is related to the concept, right? Equal variances. So this I have explained both ways. Is that okay? Any question? Okay. Now, the next situation that we are going to discuss, yes. There are two ways. Either you divide the alpha or you divide the p value, right? So it is better that we divide the p value and we simply compare with 5.
Okay. Yes. Some more question. Yes. उधर है sure. Any question? Okay. Fine. Okay. Then we go to analyze. Now we are considering just a moment. Okay. So now we are considering the next situation. The third situation is related to effectiveness of advertisement campaign. Right. So now we are comparing the average sale of the second quarter with respect to the average sale of the first quarter. What was the H1? ये हम लोगों ने पहले भी करते हैं पहले. So for that, we go to analyze, then we go to compare mean, and now we are selecting paired sample t-test. Okay. So here we are selecting the second quarter, and I am also selecting the first quarter. Means we are comparing the sales of the second quarter with respect to the sales of the first quarter. Is that okay? Right. So these are the results. आपको ये रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं. Now the sales quarter average first quarter average sale is 72,000, and average sale of the second quarter is 72.43. First quarter की सेल कितनी है 72.02. Though there is a small difference, लेकिन हम इसमें एग्जामिन क्या करना चाहेंगे कि इनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है. राइट. तो ठीक है, ऑब्जर्वेशन से भी आप कह सकते हैं कि डिफरेंस नहीं लग रहा है, बट इवन देन थिंग्स आर नॉट ऑलवेज दैट वे. इवन with a small difference also there may be a significant difference. So for that purpose we consider the p-value of the pair t-test. Again this is a two-tailed test और वैल्यू कितनी दे रखी है 0.688. So for one sample ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.688 divided by 2 कितनी आएगा. We will be having 0.344. Is that okay? And this value is greater than 0.05. So should we reject the null hypothesis or we should retain the null hypothesis? Retain the null hypothesis. It means there is no significant difference between the sales of the first quarter and sales of the second quarter. इसका मतलब advertisement campaign पे आप क्या comment करेंगे? It is not a success, it is a failure provided other things remains the same. Clear है? So this is the first result. खाली demonstration के लिए हम इसको एक बार फिर से repeat कर रहे हैं. Right? इसको हम लोग एक बार फिर से repeat कर रहे हैं. It is related to the third and the fourth quarter. We go to analyze, and then we go to compare mean, and then we go to pair t-test. आपने एक स्टेटमेंट आपने देखा था,
आपको एक बार हम फिर से शो करते हैं। यस, he want to examine the effectiveness of the advertisement campaign, पहला हो गया, and the sales promotion program. Sales promotion program कब अप्लाई किया गया है? Beginning of the fourth quarter. So it is expected that there may be impact on the fourth quarter because immediate impact की बात की गई है। तो हम लोग कंपेयर किसको करेंगे? थर्ड क्वार्टर को और फोर्थ क्वार्टर, राइट? सो हाइपोथेसिस ले लेते हैं हम लोग। So now we are comparing effectiveness of sales promotion. Now here we are comparing quarter 4 sale with respect to quarter 3 sale, right? This is the null hypothesis. If this is the thing, it means no significant difference. तो आप लोग क्या कहेंगे? Sales promotion is not a success. और H1 क्या लेंगे? Sales promotion is a success. Is that okay? Clear है सबको? So now if we go to the analysis, now we are selecting fourth quarter as well as the third quarter. ये हम लोगों ने दोनों select कर लिए and we run the test. Okay, what is the p value? बताइए p value आपको कितनी दिखाई दे रही है? 0.000 और इसको अगर हम 0.2 से डिवाइड कर देंगे तो इट इज ऑब्वियसली लेस वैल्यू, नॉट ग्रेटर, एंड दिस p वैल्यू इज लेस देन 0.05. 0.05 means we reject H0, right? Means we are rejecting the equality. Rejecting the equality means we are going with H1. H1 में ये वैल्यू कितना है? फोर्थ क्वार्टर की सेल्स कितनी है? 74,000 और थर्ड क्वार्टर की सेल कितनी है? 62,000. तो देयर इज ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द फोर्थ क्वार्टर एज कंपेयर टू द थर्ड क्वार्टर. तो हमारा इंटरप्रिटेशन क्या होगा? सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम इज ए सक्सेस प्रोवाइडेड अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम. इज दैट ओके? राइट. तो इसको आप अलग अलग उसके लिए भी रिपीट कर सकते हैं. अगेन दिस इज जस्ट ए डेमोन्स्ट्रेशन. तो इट इज रिलेटेड टू पेयर टी टेस्ट जिसको हम लोगों ने 2 बार रन कर लिया. ठीक. So any question up to this point? Is that okay? Any question? Okay, not much time is being left. लेकिन हम थोड़ा सा आपको नॉन पैरामेट्रिक भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं. ओके, इट इज रिलेटेड टू द सेकेंड केस. 15 मिनट्स हम लोग और करेंगे. इज दैट ओके? राइट. इट इज रिलेटेड टू द सेकेंड केस. ओके, हम आपको जल्दी से ये केस एक्सप्लेन कर लेते हैं. It is related to a promotional program related to a mutual fund. Okay. इसमें थोड़ा वेट कर लेते हैं.
ओके, चलिए हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देते हैं. It is related to the willingness. It is related to the willingness shown by the business executives for purchasing mutual fund. Okay. और इसमें जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, मतलब कंपनी एग्जीक्यूटिव्स, दे बिलोंग टू द 3 कैटेगरी: स्मॉल कंपनी, मीडियम कंपनी एंड द मेजर कॉर्पोरेशन. राइट. सो हमको इसको इसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करना है. इज दैट ओके? देयर आर एडिशनल इश्यूज ऑल्सो जिसको प्रॉब्ली अभी कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपको हिंट दे देंगे कि एक फैमिलिटी के रिस्पेक्ट में कंपेयर करना है और इसके बाद किसको करना है, पोजीशन इन द कंपनी के रिस्पेक्ट में करना है. ओके. सो जैसा हम लोगों ने इसमें पहले किया था, यहां पर भी हम लोग स्मॉल और मीडियम को या स्मॉल और मेजर को वी कैन कंपेयर यूजिंग अनदर अप्रोच दैट इज नोन एज नॉन पैरामेट्रिक, क्योंकि ये नॉर्मलिटी फॉलो नहीं कर रहा है. तो बस जस्ट लाइट आती है तो हम लोग उसको करते हैं. हाँ, माइक. यस. So we are just taking the hypothesis of those 3 sentences in the PDF. Like just promotion will increase the sale. I am not considering the fourth part because that is related to 4 locations. These 4 locations means we should have more than 2 groups, right? More than 2 samples. That is belongs to the K independent sample that will be covered under ANOVA. Sir, I just wanted to ask, sir, we are taking the first 3 assumptions. First 3 declarations. Rejecting H0 at 5%. Yes. Point 0.000 is less than 0.05, so we are rejecting H0. What is H0? That there is no significant difference between Q3 and Q4 से, right? So उसको हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं. रिजेक्ट करने का मतलब है देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और सिग्निफिकेंट डिफरेंस किस डायरेक्शन में जा रहा है? सेल्स आर इंक्रीजिंग. सेल प्रमोशन प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेल्स को बढ़ाना. तो H0 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है कि देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ द सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, और H1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देयर इज अ increase in the sales, so sales promotion program is a success. Okay, अभी ऑन होता हम आपको दिखा देंगे. ओके, जैसा इसमें आप लोग देखें, यहाँ पे H0 क्या है? इक्वल टू का है. इक्वल टू का मतलब है नॉट ए सक्सेस, और H1 क्या होगा? सेल्स आर इंक्रीजिंग, दैट इज सक्सेस. सो द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू द एडवर्टीजमेंट कैंपेन and the second one is related to the sales promotion program. Both things remains the same. पहले केस में P, सेकेंड केस में P वैल्यू कितनी आई है? 0.000, less than 0.05. We reject H0. Reject H0 means किसको रिजेक्ट कर रहे हैं? सॉरी, रिजेक्ट H0 means किसको रिजेक्ट कर रहे हैं? सक्सेस, नॉट ए सक्सेस को रिजेक्ट कर रहे हैं. इट मींस is a success provided other things remains the same.
can we also take like the sales in the second quarter? Okay, right? Actually, the hypothesis, that is the null hypothesis, right? Since in SPSS, obviously that is a inbuilt software. So SPSS पे जितने भी टेस्ट बनाए गए हैं, वो they consider H0 as no risk. Okay, and normally also for a common man also, null hypothesis means it is no risk, right? Though in statistics we इसको हमने आपको लिया नहीं था, हमेशा हम लोग लिखते कैसे हैं, म्यू इज लेस देन और इक्वल टू म्यू, राइट? लेकिन H1 में वी नेवर इंक्लूड इक्वल, इट कैन बी म्यू लेस देन म्यू2, राइट? इट कैन बी नॉट इक्वल टू, राइट? सो इक्वल टू इज देयर टू द नल हाइपोथेसिस बिकॉज इट अज्यूम्स नो रिस्क. Okay, right? So that's why the formulation of the null hypothesis as per the compatibility is important. Okay. So हम लोग जो second situation discuss कर रहे थे, that is related to non-parametric case. Right, non-parametric test. Here we cannot assume about the assumption of the normality. Is that okay? Right. So for that, I am considering the second data set. So here we are taking the second data set. It is the Ventura data set. Sorry, it is the mutual fund data set. यहाँ पे हम लोग का जो वेरिएबल है, that is the willingness. आप लोग चेक करेंगे, the main variable is willingness to purchase X mutual fund. इसको हम लोग एग्जामिन करने जा रहे हैं. Is that okay? Right. So first we get it confirmed. ये जो हमारा वेरिएबल है willingness, जिसको हम हमारा बेस वेरिएबल है, ये नॉर्मलिटी फॉलो कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा है. हमने आपको एक तरीका तो नॉर्मलिटी एग्जामिन का किसके थ्रू बताया था, एक्सप्लोर के थ्रू. You can, there is another way also, not that much effective, but there is another way. You go to analyze, then go to non-parametric test, then you go to one sample Kolmogorov-Smirnov test. Though Shapirovic test is not available here, but just if you want to use Kolmogorov-Smirnov test, तो एक ऑप्शन यहाँ पर भी दे रखा है. So we select the willingness. तो वेट कर लेते लाइट आ जाए. ओके, इज दैट ओके? और हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं एच नॉट हमारी क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल. दिस इज फॉर एच नॉट, राइट? सो व्हाट इज द पी वैल्यू? पी वैल्यू कितनी है? not 0.000. 0.000 is a small value that is less than 0.05, so we reject H naught. Means the distribution
the population distribution cannot be assumed to be the normal one. क्योंकि नॉर्मल हम assume नहीं कर सकते हैं, तो we cannot employ the parametric. Is that okay? तो ये जो इससे रिलेटेड आपको जो भी करना है इस डेटा सेट से, that is related to non-parametric case. So before running any test, right, there are parallel tests. जैसा हम लोग इस पे देखें, बेसिकली हम लोग अभी इसको डिस्कस कर रहे हैं. देयर आर टू इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले. तो पैरामेट्रिक पार्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? टी टेस्ट डिस्कस किया था. देयर इज ए पैरेलल टेस्ट, देयर इज ए नंबर ऑफ टेस्ट. जो टेस्ट हम आपको बता रहे हैं, दैट इज द मैन विटनी यू टेस्ट. यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस इज नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी. इन द सेम वे हम लोग ने पेयर टी टेस्ट डिस्कस किया था. That is for related or the dependent sample, paired sample. Right? इसके लिए हम लोगों ने कौन सा यूज किया था? Paired sample t test use. So there are other tests also like Wilcoxon test, sign test also, which are parallel to or equivalent, non-parametric equivalent to the paired sample. Right? आप लोग इसके बाद ANOVA भी पढ़ेंगे. ANOVA is a parametric test. And there is a test that is the Ruskell-Wallace test. It is non-parametric equivalent to one-way ANOVA. It means there are two approaches. First, we decide whether we go for the parametric test or we go for non-parametric test. And equivalent tests are available, right? Why we are studying a non-parametric test? Because in general situation, normality assumption is rarely made. Normality assumptions ज़्यादा हम लोग बना नहीं पाते हैं, right? So in the real life scenario, we are most probably getting the situation where our data is not normal, right? So there are researches, if we take large sample, अगर एक बहुत बड़ा sample ले लें, तो normality assumptions को हम लोग क्या कर सकते हैं? We can ignore also. Anyway, we should have a knowledge about both parametric tests as well as non-parametric tests. So these tests are more generic, more general, but they have less differentiating power as compared to the parametric test, right? So इनका effectiveness कम होता है as compared to parametric test. Is that okay? So that's why we try to use parametric test, but that requires the normality assumption. सिर्फ आपको शो करने के लिए एक टेस्ट हम रन करके दिखा देते हैं. We go to analyze, then we go to non-parametric test, then we go to legacy dialog, and here I am selecting two independent samples, right? हम लोगों ने इससे पहले two independent sample t-test use किया था. I am repeating that. We should go to analyze. This is for examining and normality, right? So we should go to analyze. One method of examining normality is through the descriptive statistics and the explore. That is a better option, but just for a shortcut, we go to analyze, and after analyze, we go to non-parametric, then we go to legacy dialog, and then we go to one sample case test. जो हमने इससे पहले आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया था, किसी ने ऑनलाइन पूछा था, राइट? वी सेलेक्ट द रिलेवेंट वेरिएबल एंड रन द टेस्ट, एंड वी इंटरप्रेट एज पर द पी वैल्यू दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड. ओके, क्लियर? ठीक. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द सिचुएशन. आपको हम एक मिनट शो कर दें. Here we want to examine willingness or compare willingness of company executives for purchasing a mutual fund with respect to company size. So we have three category of company, लेकिन क्योंकि अभी हम लोगों ने ANOVA या K independent नहीं करा, तो हम लोग दो को कंपेयर कर रहे हैं. So we are comparing just for the demonstration small business executives versus medium business, कि उनका willingness सेम है क्या, उनका willingness डिफरेंस है. तो इसमें H0 हम लोग क्या लेंगे इस केस में? H0 would be
average willingness of small company executive equals to average willingness of medium company executive. And just for the demonstration, we are not bothering zyada ya kam hai, we are just examining whether there is a difference or not. So what is the H1? Mu S is not equals to mu M. Is that okay? So not equals to means हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करने जा रहे हैं? Two-tailed test. All concepts remains the same. बस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फॉर्म बदल जाएगा. So we go to analyze, then we go to non-parametric, then we go to legacy, and then we go to two independent. Path is clear. Analyze, non-parametric, legacy, and then we go to two independent sample tests. Here, a number of non-parametric options are there. Mann-Whitney test, Kolmogorov-Smirnov Z test, Moses extreme reaction, Wald-Forsovich test. Right? Normally, the most popular test is Mann-Whitney. So Mann-Whitney test is there in the default. बाकी आप इसका डायलॉग बॉक्स देखेंगे, दोनों डायलॉग बॉक्स बिल्कुल टी जैसे हैं कि नहीं? आपने ऐसा देखा था इंडिपेंडेंट सैंपल का? सो वी सेलेक्ट द वेरिएबल दैट इज द विलिंगनेस, और ग्रुप्स हम कहां से क्रिएट कर रहे हैं? कंपनी साइज. ओके, जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग क्या ले रहे हैं? 1 and 2 ले. इज दैट ओके? एंड वी रन. So this is the Mann-Whitney. Fine. P वैल्यू आपको दिखाई दे रही है? कितनी है P वैल्यू? .05 है. तो हम लोग H0 को क्या करेंगे? ओके, इसका मतलब willingness of small company executives and the medium sized company executives are not same. This is just for the demonstration. Next session में आपको थोड़ा डिटेल इसको भी कवर कर दिया. ओके, थैंक यू. जो क्वेश्चंस हैं आप पूछ लीजिए. माइक. Sir, I have a question related to randomized control trials with multiple arms, where the वो अलग से. उसके लिए कौन सा पैरामीट्रिक टेस्ट यूज कर सकते हैं? Which would be the strongest? कंट्रोल चार्ट. क्या रैंडमाइज कंट्रोल? Randomized control. Those are medicine और उसकी. So, okay, in that situation, you have two independent sample. कुछ को मेडिसिन दी गई, कुछ को मेडिसिन नहीं दी गई है, right? So the same population doesn't belong to the both. आप खुद डिसाइड करिए कौन सा टेस्ट इंडिपेंडेंट सैंपल, राइट? लेकिन अगर आप कोई इंटरवेंशन, जैसे आप सेम पर्सन पे इंटरवेंशन अभी कर रहे हैं, कि आपने 6 months का ब्रेक किया, फिर दूसरा इंटरवेंशन आपने दूसरे पे किया, या नो इंटरवेंशन किया, तो उसमें तो आपकी क्या हो जाएगा? रिलेटेड हो जाएगा. दैट वुड बी द पेयर टी, राइट? सो एक्चुअली दैट डजंट decided by the test, it is decided by the method of the sampling or method of the research design that you are going to. So आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को कैसे कर रहे हैं? लेकिन नॉर्मली जो कंट्रोल ग्रुप्स वाले जितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो उसमें वी ट्राई टू हैव सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप्स इन द ट्रीटमेंट ग्रुप एज वेल एज द कंट्रोल ग्रुप, लेकिन वो एक्चुअली दे आर द डिफरेंट, दे एक्चुअली बिलोंग्स टू द इंडिपेंडेंट सैंपल. ओके, लेकिन अगर आप कहीं से इंश्योर कर लें कि दोनों को एक ही दोनों में रख करके करेंगे, तब तो पेयर टी टेस्ट कर सकते. ओके, बाकी आप लोग जैसे एक्सपेरिमेंट बनाते हैं उस पर डिपेंड. यस, एनी अदर क्वेश्चन?